Give heading vectors. वेक्टर्स जो चैप्टर है ना वो आता है मोशन इन ए प्लेन में. मोशन इन ए प्लेन चैप्टर नंबर 3. आफ्टर कंप्लीटिंग वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स विल कम बैक टू चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे मैंने नोट्स खोल दिया है लास्ट ईयर का सो दैट वी कैन सेव टाइम इन कंप्लीटिंग द टॉपिक्स. ओके विजिबल है ना? ओके नाउ सी. अभी देखो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इन क्लास 11 and 12 most of the quantities you will be dealing with will come under vector quantity. Vector is a part of mathematics. It is a part of mathematics, remember. It is a different mathematics. It is a just like logarithm, trigonometry, these vector will also come under mathematics. Understood? Not understood? Mathematics. It's not a chapter of physics. It has nothing to do with Newton's laws. It's only a mathematics which is required to deal with physics quantities which are vectors. Which are what? Its algebra is very essential to deal with future chapters. Addition will be different, subtraction will be different, not like numbers. It is a different algebra. Keep that in mind. अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. On the basis of direction. On the basis of what? On the basis of direction, physical quantities are divided into two parts. Number 1, स्केलर. स्केलर मतलब जिनको समझने के लिए only magnitude is enough. Only what is enough? Magnitude. मतलब साइज. Only information about the size. How much is the size? How much is the size? Those will be called as scalar quantities. What quantities? Scalar. Scalar मतलब जिनको समझने के लिए और इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं चाहिए, बस उनका साइज के बारे में बताना है. साइज मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में. I do not require in which direction they are acting. That information I do not require. I only require the size, the magnitude. Example, mass. किसी ऑब्जेक्ट का मास जैसे 10 किलोग्राम है, so I do not give the direction information. I only give about the magnitude or size. जैसे distance 10 meter. 10 meter only deals with what? Size. Speed 10 meter per second. Only size. Work 100 joule. Energy say 50 joule. Pressure 10 pascal. 15 pascal. प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल. करंट 5 एम्पियर, 2 एम्पियर. These will all come under the examples of what quantities? Scalar quantity. क्योंकि करंट स्टूडेंट्स आस्क कि सर करंट has a direction. We know current has a direction in a circuit. Current has a direction in a circuit. Current has a direction in a circuit, either clockwise or anti-clockwise. Either clockwise or anti-clockwise. But it does not matter to me. मान लो यहां पर एक बल्ब है, तो करंट क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, बल्ब तो जलेगा. Because electricity is flowing, so I do not require that direction. मुझे बस बताओ कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. I want only that much current should flow. I do not require that you tell me about the direction of the current, whether it is clockwise or
Anti-clockwise. I only need the information whether the bulb is glowing or bulb is not glowing, whether electrical energy is flowing or not flowing. So current will come under scalar quantity because direction information is not at all required. जैसे टाइम comes also under scalar quantity. टाइम एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, टाइम आगे पीछे होता है क्या? नहीं होता है, तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता ही जाता है. तो अगर एक ही डायरेक्शन है, बढ़ता ही जाता है, सबको पता है टाइम बढ़ता जाएगा, है ना? टाइम कम होगा क्या? पीछे आएगा क्या? नहीं आएगा. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट टाइम विल कीप इंक्रीजिंग. सो इफ ओनली it increases, then I do not require to assign it a direction because we all know that time is increasing. Time is what? Increasing. It has a fixed direction. Clockwise. Clockwise बढ़ता ही जाएगा. तो हम लोग जब टाइम बताते हैं किसी को, से we say 10 am, उसके बाद उसको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, 11 am, 12 am, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा. सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने का जरूरत नहीं है when you are dealing with time. So time will also come under what quantity? Scalar quantity. जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए डायरेक्शन का और हमको पूरा आइडिया मिल जाए क्वांटिटी के बारे में, only by their size, those will come under what quantity? Scalar quantity. But vector quantity में जैसे मैंने बोला weight of a body, जैसे ही मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में आएगा weight मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अभी फोर्स को समझने के लिए वी नीड टू इंफॉर्मेशन. कितना और किधर? वी नीड टू इंफॉर्मेशन. हाउ मच एंड विच डायरेक्शन. दैट विल गिव यू फुल इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने बोल दिया 10 न्यूटन. सो 10 न्यूटन से मुझे यह पता नहीं चला कि 10 न्यूटन किस तरफ काम कर रहे हैं, है ना? तो आई एम गिविंग हाफ इंफॉर्मेशन. अगर मैंने फोर्स के बारे में बता दिया 10 न्यूटन, दैट इज आई एम गिविंग यू हाफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क मी, सर इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड. तो मैंने बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, तो अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. व्हाट सर? नाउ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया. आई हैव गिवन यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. This gives me complete idea about that quantity. Which quantity? Force. So force will come under the banner of which quantities? Vector. Weight मतलब force of gravity. So it will come under vector quantity. Acceleration will also come under vector quantity because magnitude के साथ साथ मुझे डायरेक्शन बताना पड़ता है. In which direction particle is accelerating? Whether it is accelerating towards left, whether it is accelerating towards right. So I have to give you information. Displacement जैसे मैं यहां पर हूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. सो मैंने बता दिया तुमको 5 मीटर. तो 5 मीटर से ये पता नहीं चला कि मैं लेफ्ट में गया या राइट में. सो आई हैव टू गिव यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. तब पता चल जाएगा कि सर अपने ओरिजिनल पोजीशन से किस तरफ डिस्प्लेस हुए, लेफ्ट या राइट. सो आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्शन. रिगार्डिंग व्हाट? मतलब जिन क्वांटिटीज का पूरा आइडिया होने के लिए आई हैव टू गिव यू बोथ इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दे विल कम अंडर व्हाट क्वांटिटी? Vector quantity. Now another type of quantity you will see in books. Sometimes in good books you will see they will mention tensor. They will mention what? Tensor. Actually tensor is a common name. Remember it is not a special type of quantity. ये कोई नया quantity नहीं है. Tensor is a common name given to scalar and vector. Common name given to scalar and what? Vector.
अच्छा बताना, स्केलर में कितना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है? बस अबाउट द मैग्नीट्यूड, ओनली वन इंफॉर्मेशन, ओनली टू कंप्लीटली मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट क्वांटिटी. दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड मतलब एक ही इंफॉर्मेशन काफी है इसको समझने के लिए, क्वांटिटी को समझने के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो. ऑर्डर मतलब कितना इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन होगा तो ऑर्डर क्या बताया? जीरो, एक इंफॉर्मेशन होने से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेक्टर में कितना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है? मैग्नीट्यूड के साथ क्या देना पड़ता है? डायरेक्शन. सो वेक्टर विल बी कॉल्ड एज टेंसर ऑफ ऑर्डर 1. अंडरस्टूड? अगर दो इंफॉर्मेशन है तो उसको बोला जाएगा टेंसर ऑफ ऑर्डर 1. अगर एक ही इंफॉर्मेशन है तो उसको बोला जाएगा टेंसर ऑफ ऑर्डर 0. सो टेंसर इज ए कॉमन नेम फॉर स्केलर एज वेल एज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. सो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी. बट कभी कभी बच्चा लोग पूछता है, कहीं कहीं से पढ़ लेता है, उस्तादी मानने के लिए मुझसे आके पूछता है. बुक में भी गलत लिखा होता है, मैं बता देता हूं. बुक में दे विल से टेंसर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी, बट नो, टेंसर इज नॉट ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी. इट इज ए कॉमन नेम गिवन टू व्हाट? Scalar as well as vector. All quantities will come under the banner of tensor, both scalar and also what? Vector. अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ दो डायरेक्शन देना पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ एक ही डायरेक्शन बताना पड़ रहा है तो टेंसर ऑफ ऑर्डर 1. अगर किसी क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है देन इट इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 0. अभी यहां पे मैंने एक शब्द यूज किया है वर्टिकली. क्या यूज किया है? याद रखना, न्यूमेरिकल फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल आएगा यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. तो लैंग्वेजेस को समझने के लिए जो जो मेरे दिमाग में आएगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर. जैसे यहां पे मैंने बोला वर्टिकली, हॉराइजेंटल वर्टिकल शब्द 11 और 12 में कहीं भी न्यूमेरिकल में दिख गया मतलब उस न्यूमेरिकल में ग्रेविटी को कंसीडर करना है. किसको कंसीडर करना है? अगर न्यूमेरिकल में दे आर मेंशनिंग बार बार हॉराइजेंटल वर्टिकल, तब याद रखना यू हैव टू यूज व्हाट? ग्रेविटी इन दैट न्यूमेरिकल. क्योंकि सेकेंड ईयर में कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. जैसे ही सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हम लोग ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे और कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी दोनों को कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. दैट मीन्स सर हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कब इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है और कब इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ग्रेविटी को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना है. हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड? बाई सीइंग द लैंग्वेज. लैंग्वेज में क्या रहेगा? हॉराइजेंटल और वर्टिकल. अगर हॉराइजेंटल और वर्टिकल शब्द है, मान लो बोलेगा ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉराइजेंटली. यह शब्द दिखा जैसे ही तुमको दिख गया मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि किसको कंसीडर करना पड़ेगा? ग्रेविटी. किसके साथ? फील्ड के साथ. किसके साथ? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लेना पड़ेगा और ग्रेविटी का फोर्स भी लेना पड़ेगा. दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फील्ड. तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेविटी को, बट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड भी होता है ग्रेविटी. सो हाउ एज ए स्टूडेंट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर टू इंक्लूड ग्रेविटी और टू एक्सक्लूड ग्रेविटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर न्यूमेरिकल में हॉराइजेंटल वर्टिकल शब्द है then you have to include what? Gravity. These two terms will be used when gravitational field is in effect. Gravitational field is in effect. Understood? Not understood? तो gravity को कब लेना है? जब न्यूमेरिकल में क्या क्या शब्द रहेगा? Horizontal और they will say marker is kept in the horizontal table. So why they are using बार बार horizontal vertical समझ में तो आता है. This is horizontal and this is vertical. सो हॉराइजेंटल वर्टिकल कब यूज करेंगे? जब न्यूमेरिकल में किसका इन्वॉल्वमेंट है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो देखो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन मैंने लिखा है. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
which gives us the power of speculation. Power of speculation मतलब किसी क्वांटिटी को अगर ठीक से समझना है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताना है, उसको बोला जाता है फिजिक्स में पावर ऑफ स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब वी प्रेडिक्ट थिंग्स. साइंस से क्या करते हैं हम लोग? प्रेडिक्ट करते हैं. वी मेक डिवाइसेस टू प्रेडिक्ट वेरी नियर फ्यूचर. वेरी नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में बिहेवियर कैसा होगा. तो अगर किसी क्वांटिटी को पूरा समझने के लिए, उसके फ्यूचर एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए, जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर 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 लग रहा है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ एक्सीलरेट करेगा. एक्सीलरेट करेगा मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट पर वो किस डायरेक्शन में जाएगा. तो उसके बारे में जानने के लिए यू नीड ए न्यू मैथमेटिक्स नोन एज वेक्टर अलजेब्रा. व्हाट अलजेब्रा? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर राइट साइड में फोर्स लग रहा है तो ये राइट साइड में ही जाएगा. लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, देन वी कम टू कंफ्यूजन कि ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो किधर जाएगा. सो वी नीड ए डिफरेंट मैथमेटिक्स टू डील विद सच सिचुएशंस. ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा मतलब दैट इज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. व्हाट प्रोस्पेक्ट? फ्यूचर मतलब थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा, कितने से एक्सीलरेट करेगा, 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहां पर होगा. ये सब जानने के लिए तुमको एक नया मैथमेटिक्स चाहिए नोन एज वेक्टर अलजेब्रा. व्हाट अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब कभी भी फिजिक्स या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट वी आर स्टडीइंग, इट गिव्स अस टू सी फ्यूचर. इट गिव्स अस पावर टू सी व्हाट? वेरी नियर फ्यूचर. नेक्स्ट इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा. That is why this word has been used, speculation. Understood? Not understood? Now, एक साथ एक पेज पढ़ा देता हूं, फिर लिखेंगे. What is being written? Pictorial representation. Pictorial representation मतलब in numericals अगर मुझे graphically represent करना है वेक्टर को, then we'll represent vector by an arrow. By a what? I am going to represent vector by an arrow. एरो में दो पार्ट है, एक है टेल और दूसरा पार्ट क्या है? हेड. ये जो हेड है ये देगा डायरेक्शन. क्या देगा? और ये जो टेल है, दिस विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. दिस विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब उसके साइज के बारे में. किसके साइज के बारे में? क्वांटिटी के साइज के बारे में. अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है, तो 10 न्यूटन का फोर्स मान लो ऐसे बनाया मैंने, से दिस इज 10 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. अभी अगर मैंने बोला 5 न्यूटन बनाओ, तो 5 न्यूटन मतलब इसका आधा. तो मैंने किसको चेंज कर दिया? इसका मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया? आधा. मैग्नीट्यूड को आधा मतलब लेंथ ऑफ द टेल भी कितना हो गया? हाफ. तो मतलब जितना लंबा टेल उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना छोटा टेल उतना कम मैग्नीट्यूड. दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट वेक्टर पिक्टोरियली. दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट रिप्रेजेंटेशन? अरे समझ में आया क्या? अभी एक क्वांटिटी, एक क्वेश्चन बीच में मैं दे रहा हूं, किसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट का. वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है. बच्चा लोग गलती करता है इसमें. जैसे कोई भी क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? कोई भी क्वांटिटी को मैंने बताया था, जैसे फोर्स है, फोर्स को कैसे लिखते हैं? 10 न्यूटन. 10 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू. समझना ध्यान से. और न्यूटन होता है यूनिट. न्यूटन क्या होता है? जैसे कोई रॉड का लेंथ तुमने मापा है, लेंथ मान लो 5 मीटर है. कितना मीटर है? तो 5 क्या बन गया? न्यूमेरिकल वैल्यू. और ये क्या है? यूनिट. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझना. तो 5 मीटर को कैन आई राइट 500 सेंटीमीटर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. तो 5 मीटर कितना होगा? 500 सेंटीमीटर. समझना. मीटर जब था तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5. सेंटीमीटर जब बना तब न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया. क्या वैल्यू चेंज हो गया? रॉड का साइज बदल गया क्या? साइज तो वही है 5 मीटर.
5 मीटर बोलूं या 500 सेंटीमीटर, रॉड का साइज तो सेम है। अरे नहीं आया समझ में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज तुम कंफ्यूज मत करना। जैसे वेदर मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज ऑन चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? साइज। ऑलवेज आई हैव सीन स्टूडेंट्स विल राइट कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट बदलने से हाँ मैग्नीट्यूड मतलब ये 5 है, ये 500 है, बदल गया है। बट द आंसर इज यस or no. No, the magnitude of physical quantity do not change with unit of what? Measurement. मतलब साइज नहीं बदला, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया है। क्या वैल्यू बदल गया है? अगर साइज की जगह पर, यहां पर मैग्नीट्यूड की जगह पर तुमसे पूछा जाता वेदर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज, तब तुम लिखता यस। नॉट अंडरस्टूड। अगर तुमको पूछा जाता न्यूमेरिकल वैल्यू बदला है क्या? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बदला है। मीटर में कितना है? 5। सेंटीमीटर में कितना है? 500। न्यूमेरिकल वैल्यू बदला है। लेकिन यहां पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू शब्द यूज हुआ है या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब साइज। तो साइज मतलब 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर डिफरेंट है या सेम चीज है? रे सेम चीज है। साइज ऑफ रॉड, साइज ऑफ रॉड मैंने जैसे बता दिया 5 मीटर, तुमने बोला हाँ सर 500 सेंटीमीटर, दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं। तो साइज मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है वेदर मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज ऑन चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डोंट चेंज विथ यूनिट ऑफ क्या? मेजरमेंट। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? हाँ, कंफ्यूज मत करना कि मैग्नीट्यूड ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। वर्ड को समझना फिर क्वेश्चन का आंसर देना। अरे समझ में आया? राइट नाउ राइट। नहीं नहीं, फिजिक्स में वेक्टर्स फिजिक्स में आएगा, फिर बेसिक मैथ्स कॉपी में। वेक्टर्स को जितना अच्छे से समझोगे फिजिक्स उतना इजी हो जाएगा, और बेसिक मैथमेटिक्स। ये दोनों टॉपिक थोड़ा टाइम देके पढ़ना चाहिए, नहीं तो यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। प्रॉब्लम रह जाएगा वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स में। द मोर यू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड वेक्टर्स, द मोर इजियर द जर्नी विल गेट। 50% फिजिक्स में बोल के रखा हूं, 50% फिजिक्स ये दोनों टॉपिक में खत्म हो जाएगा। रेस्ट 50% इज लॉ, F इक्वल टू ma, कुलम्स लॉ, K Q1 Q2 by R², दीज आर ओनली लॉज। तो मैथ्स जिसका स्ट्रांग होगा, जो फिजिक्स का मैथ्स चाहिए, इसलिए मैथ्स में थोड़ा डिटेल पढ़ाता हूं। ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्री, लोगारिथम, कैलकुलस सब पढ़ा देता हूं, लेकिन उसको रिवीजन में नहीं रखता है बच्चा। सो एवरी ईयर दे सफर, वेदर इट इज लेटर पार्ट ऑफ 11 और राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 12। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को हमेशा रिवीजन में रखना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ही फिजिक्स का फंडामेंटल है, बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब बेसिस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को तो हमने डिवाइड किया था फंडामेंटल और डिराइव्ड में भी। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अभी हमारा बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के ऊपर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है स्केलर और वेक्टर में, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। वेक्टर है, ये वेक्टर है, मतलब क्वांटिटी में किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करें वेक्टर और दो वेक्टर। अगर किसी ने बोल दिया दोनों को कंपेयर करो, तो याद रखना ये कैनॉट कंपेयर वेक्टर्स, वी कैनॉट कंपेयर वेक्टर्स। जैसे ये कंपेयर नहीं है, लेकिन ऐसे समझ तो नहीं रहे हो। बता दूंगा। आई कैन टेल यू अबाउट द साइज, आई कैन टेल यू अबाउट द व्हाट? साइज मतलब
सारे वेक्टर है ना। अभी ए वेक्टर पूरा वेक्टर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है। सो वी कैन नॉट कंपेयर बोथ द वेक्टर्स, वी कैन ओनली कंपेयर द मैग्नीट्यूड, वी कैन ओनली कंपेयर द मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो until and unless the question setter has specified me definitely about the direction, till then I can compare only the magnitude, only the magnitude. अगर छोटा टेल है तो मैग्नीट्यूड कम, अगर बड़ा टेल है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। ज्यादा है। अभी मैथमेटिकली और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, जैसे किसी ने बोला वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखेंगे वेलोसिटी को? एरो ऊपर में क्या लगा देंगे? तो इन राइटिंग मतलब नॉर्मल जब हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को, तो हम लोग क्वांटिटी का सिंबल देंगे और ऊपर में एरो लगा देंगे। एरो हमेशा सेम रहेगा रे। वेलोसिटी मान लो अगर राइट में काम कर रहा है तब भी एरो इधर रहेगा, मान लो वेलोसिटी लेफ्ट में काम कर रहा है तब भी एरो सेम ही रहेगा। इसको उल्टा मत कर देना। अरे समझ में आया क्या? दैट मीन्स इन राइटिंग वेलोसिटी वी वेक्टर, जैसे मोमेंटम लिखेंगे मोमेंटम पी वेक्टर, जैसे फोर्स वेक्टर लिखेंगे एफ वेक्टर, जैसे एक्सीलरेशन वेक्टर लिखेंगे ए वेक्टर। सो ऑल वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन राइटिंग? ऊपर में क्या लगाएंगे? एरो। अरे समझ में आया क्या? जैसे किसी ने मुझे बोला एक कार है जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा सुनना, ये 10 मीटर पर सेकेंड तो मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? अभी मुझे बताना पड़ेगा किधर, मतलब डायरेक्शन, मतलब तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या यूज करते हैं हम लोग? एंगल। क्या यूज करते हैं? एंगल। जैसे ही मैंने एंगल बताया 37 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम क्या पूछेगा? सर 37 डिग्री विथ 37 डिग्री विथ विच एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैंने बोला कि एक कार ट्रेवल कर रहा है, एक कार ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, मान लो ये वाई डायरेक्शन है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला? तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? एंगल। क्या बताना पड़ेगा? एंगल। एंगल से पता चल जाएगा कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जैसे उससे भी हाफ इंफॉर्मेशन पता चला। 37 डिग्री व्हाट एक्सिस यू हैव टू स्पेसिफाई, कौन सा एक्सिस के साथ? अगर कोई बच्चा बोलता कि ये पूरा 90 है, ये 37 है, तो ये कितना एंगल होगा बोलना? 90 माइनस 37 कितना होता है रे? 53। 90 माइनस 37 कितना होता है? तो कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल, कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। बोथ आर सेम, बोथ आर, अरे 37 डिग्री यहां से बनाई या 53 डिग्री यहां से, डायरेक्शन तो वही रहा। नहीं आया समझ में? दैट मीन्स सर व्हेन बंद हो, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिखते वक्त देखो क्या लगाएंगे? मॉड। क्या लगाएंगे? इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस सिंबल को दो साइड में ऐसे लाइन खींचने से इसको बोला जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट क्या करेगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? एंगल को। तो कभी भी वेक्टर को तुम लिखेगा तो मैग्नीट्यूड along with what? Direction. That will give you complete information about that quantity, complete information about that. So in writing always remember वेक्टर को लिखते वक्त मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके साथ क्या बताएंगे? डायरेक्शन के लिए क्या बताएंगे? एंगल। तो वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा? एंगल देगा। क्या देगा? और एंगल
ये भी बता, अगर एक्स एक्सिस के साथ बताएंगे तो 37 डिग्री, नहीं तो वाई एक्सिस के साथ बताएंगे तो एज पर दिस एग्जाम्पल। आया समझ में? नहीं आया? राइट। ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल तो एरो बना देंगे, बट मैथमेटिकली वी कैन राइट मॉड्यूलस फिर एंगल, मॉड्यूलस फिर एंगल। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 क्या है देखो एक बार, पोलर वेक्टर। रीड द डेफिनेशन। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which show only translational effect। ट्रांसलेशनल इफेक्ट ई होगा यहां, ई। ट्रांसलेशनल इफेक्ट, ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है रे? स्ट्रेट लाइन। क्या लाइन? स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लो कोई वेक्टर है फोर्स, मान लो कोई वेक्टर है मोमेंटम, मान लो कोई वेक्टर है वेलोसिटी। So they all represent straight line, they all represent what? जैसे मैं अभी ऐसे चल रहा हूं तो मेरा मोमेंटम वेक्टर सीधा है, अगर फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं तो ये है फोर्स वेक्टर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट? अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये है स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? तो जो जो वेक्टर्स ट्रांसलेशनल इफेक्ट को शो करेगा, मतलब एक टाइम पर डायरेक्शन बस स्ट्रेट लाइन मोशन को शो करेगा, उन सबको रखा जाएगा किसके अंडर में? पोलर वेक्टर। एग्जांपल मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। फिर क्या लिखा गया है बोलना? एक्सियल वेक्टर, AXIAL, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या शो करेगा? ए वेक्टर व्हिच हैज रोटेशनल इफेक्ट। क्या इफेक्ट? रोटेशनल इफेक्ट। जैसे कुछ क्वांटिटीज, क्या लिखा गया है नाम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट करेंगे थीटा वेक्टर से। किससे? थीटा के ऊपर में क्या लगाया है? वेक्टर। फिर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा वेक्टर। क्या वेक्टर? ओमेगा वेक्टर। एक एग्जांपल से समझाता हूं एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं, क्यों नाम रखा गया एक्सियल। जैसे फैन का ब्लेड मान लो घूम रहा है, फैन का ब्लेड मान लो ऐसे घूमता है, फैन का ब्लेड ऐसे। तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए हमने रूल बनाया, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए कर्ल योर फिंगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, राइट हैंड, राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फैन को चलाता हूं, देखना ध्यान से फैन का ब्लेड कैसे घूमता है, फैन ही नहीं चलता है। ये देखो, देखना ध्यान से फैन का ब्लेड कैसे घुमा, दिखा? अरे दिखता है क्या रे? तो इसका मतलब फैन का ब्लेड देखो, कर्ल करो, उंगली को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऐसे कर्ल। फैन का ब्लेड को देखो, तुम उंगली को ऐसे मत कर्ल करो, फैन का ब्लेड को देखो। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रखा? थंब किधर आया तो हवा किधर लगता है? नीचे। दिस इज वाई दे हैव टोल्ड ए रूल कि अगर फैन का ब्लेड घूम रहा है तो उंगली को कर्ल कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सच दैट थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ हवा। हवा मतलब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। दैट इज द इफेक्ट। डायरेक्शन मतलब इफेक्ट। और इजी रूल क्या है जहां जो बुक्स में लिखा होता है, मान लो कोई स्क्रू है, स्क्रू को तुम ऐसे घुमा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू किधर आता है? बाहर, है ना? वो जो बाहर आना है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब तुमने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आया कहां? आउटवर्ड। उसको बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन। अगर ऐसे घुमाएगा तो किधर जाएगा? अंदर। तो उसको बोला जाएगा इनटू द प्लेन। क्या बोला जाएगा? अरे समझ में आया क्या? मान लो यहां पे एक स्क्रू है, स्क्रू को ऐसे घुमाया तो तुमने घुमाया क्लॉकवाइज, गया किधर? अंदर। अगर तुम घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो आया किधर? बाहर। दैट मींस द
इफेक्ट तुमने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो इफेक्ट आया उस इफेक्ट को क्या वेक्टर बोला जाता है? एक्सियल वेक्टर। जैसे एक्सियल वेक्टर नाम क्यों रखा है? ये जो ऊपर फिक्स है ना फैन, ऊपर में फिक्स किया है ना सीलिंग में, नहीं किया है, उसी को बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला जाएगा उसको? और मेरा थंब देखना, थंब किधर आया था? नीचे। और थंब का अलाइनमेंट किसके डायरेक्शन पर है? एक्सिस के ऊपर। इसलिए नाम रखा गया क्या वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। इसी को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल्स घूमेंगे उसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मेरा थंब भी आया किसकी तरफ? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे समझ में आ रहा है क्या? मैं ये उंगली ऐसे घुमाया था, थंब किधर आया? नीचे, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल आया ना, और एक्सिस भी कैसा है? वर्टिकल। तो दोनों वर्टिकल है, इसलिए नाम क्या रखा गया? एक्सियल वेक्टर, बिकॉज इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज अलोंग द। तो दो वेक्टर हमने सीखा, क्या क्या वेक्टर? पोलर वेक्टर। और पोलर वेक्टर किसका काम करेगा? स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल इफेक्ट। और एक्सियल वेक्टर रोटेशनल, मतलब जहां जहां पे हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा रोटेशनल इफेक्ट को शो करने के लिए, वहां पे हम लोग किस वेक्टर को यूज करेंगे? एक्सियल वेक्टर। रूल क्या है डायरेक्शन देने के लिए? रूल, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, और देन थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्या वेक्टर? एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ। जैसे यहां पे स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब किधर आया? बाहर, आउटवर्ड। तो स्क्रू किधर आया? आउटवर्ड। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब किधर गया? अंदर। तो स्क्रू भी किधर गया? अंदर। मतलब इफेक्ट का नाम ही एक्सियल वेक्टर है। अंडरस्टूड? नाउ राइट रिटन। व्हाई नो? ये डेफिनेशन पूछा जाता है रे स्कूल में। डिफाइन एक्सियल वेक्टर। बहुत कम लेकिन पूछा जाता है, बहुत कम लेकिन पूछा जाएगा। 1 मार्क का डिफाइन एक्सियल वेक्टर। जल्दी लिखना, थोड़ा बढ़ा दूं इसको? नहीं नहीं, वही बढ़ा देता हूं टेम्परेचर, कम नहीं करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। लिखा क्या? समझना है धीरे धीरे, लिखना तेज है रे। तुम लोग उल्टा करता है, समझता है जल्दी और लिखता है स्लो, इसलिए आधा साधा समझता है। नेक्स्ट जाऊं क्या? ये फर्स्ट पार्ट है 25 पेज का, 3 पार्ट में है वेक्टर्स का नोट्स। 25 25 25 75 पेजेस है नोट्स। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज का, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स सब करा के देता हूं। इतना इतना पढ़ाता हूं वेक्टर्स, इसलिए बोलता हूं बस नोट्स को हजम करना है। बाकी बुक्स करने का टाइम मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा फिर भी 90 तो आएगा। कॉपी हजम रहेगा तब। नोट्स मेकिंग चाहिए, नहीं तो सेकेंड ईयर में कभी मन किया वेक्टर्स का थ्योरी रिवाइज करने के लिए, तब नोट्स ही नहीं होगा। करता है अभी भी बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत लोग वेक्टर्स का अलजेब्रा भूल गया है। भूल जाता है बच्चा लोग, छोटा बच्चा है क्या करेगा। 1 और 2 लिखा? नेक्स्ट जाऊं? हाँ, ये रूल है, रूल अभी जो बताया था। क्या लिखा? कर्ल योर फिंगर्स ऑफ
राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of rotation, then thumb of right hand will give direction of क्या वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रे ऊपर, ये प्लेन है, ये प्लेन समझना, ये प्लेन है, ये अरे बोर्ड को ऐसा कर दिया मैंने, तो बोर्ड को ऐसा कर दिया मतलब ये प्लेन बन गया, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आया, ऊपर, इसलिए ऊपर शो किया है। अंडरस्टूड? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर थंब आया, इनटू द प्लेन, मतलब ये प्लेन है नीचे, तो क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आया? नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए, एक पेज समझ लो पहले फिर लिखना। मान लो ये वेक्टर है, अगर ये इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या किधर पॉजिटिव मानना है किधर नेगेटिव, ये तुम्हारे ऊपर है। जनरली राइट साइड को क्या माना जाता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो वेक्टर में नेगेटिव मतलब डायरेक्शन शो करता है, वेक्टर में नेगेटिव मतलब डायरेक्शन शो करता है। मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, जैसे मैंने बोला 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट बोलने में मुझे दिक्कत होता है, बार बार एनर्जी ज्यादा जाता है, तो मैंने क्या बोला +5 मीटर, तो +5 मीटर देख के ही तुम समझ गया दैट इट इज 5 मीटर टुवर्ड्स राइट। अगर मैं बोलता 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या मतलब होता, -5, तो 5 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये माइनस क्या बताया, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट ये शब्द यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, प्लस और, नहीं आया समझ में? तो मान लो ये एक वेक्टर है ए, क्या वेक्टर है, अगर मैंने लिखा बी वेक्टर इक्वल टू +2a, प्लस इसका क्या मतलब हुआ, +2a का मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो गया, मैग्नीट्यूड, और सामने क्या साइन है, प्लस, तो प्लस मतलब b जो नया वेक्टर बना वो a का डायरेक्शन में होगा। किसका डायरेक्शन में होगा, a का डायरेक्शन, क्योंकि प्लस साइन है, क्या साइन है, तो प्लस का मतलब होता है अगर a वेक्टर राइट में है तो b भी राइट में होगा, और मैग्नीट्यूड कितना है, डबल, तो अगर ये लेंथ इतना है तो इसका डबल बनाना है अंदाजे से। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? अगर a का लेंथ इतना है तो b कितना गुना है a का, डबल, मतलब 2 बार। समझ में आया, नहीं आया? अगर मैं बोलता b इज हाफ ऑफ a, हाफ मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आधा, तो अगर a वेक्टर इतना है तो b वेक्टर उसका आधा। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट वेक्टर्स। सो मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर मतलब कोई भी नंबर से अगर तुम किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है, अगर वो नंबर, सुनना, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 है, अगर वो नंबर, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर वो नंबर लेस देन 1 है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, अगर प्लस साइन है तो डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की तरह ही रहेगा, टुवर्ड्स राइट लेफ्ट नहीं। ऐसे बोलना, ओरिजिनल वेक्टर जिस डायरेक्शन में है नया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। आया समझ में? ए वेक्टर किधर था, राइट में, तो अगर प्लस लगाया है मतलब ए वेक्टर जिधर है बी वेक्टर भी उधर होगा। अगर यहां पर 2 है मतलब मैग्नीट्यूड डबल है, अगर यहां पर हाफ है तो मैग्नीट्यूड आधा है। अगर मान लो -2a दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, माइनस मतलब सर ने क्या बताया था, तुम राइट लेफ्ट छोड़ो, तुम बस ये याद रखो, अगर सर ने बोला b इज 2 टाइम्स ऑफ -a, अगर ये माइनस है, नंबर नेगेटिव है,
तो माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ माइनस है, तो मैग्नीट्यूड तो डबल होगा बट डायरेक्शन ए का उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा? अरे समझ में आया क्या? नहीं आया? तो बी वेक्टर अभी किस तरफ बनेगा, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। कैसे लिखा जाएगा? माइनस ऑफ, तो माइनस होने से मतलब वेक्टर क्या हो गया? फ्लिप हो गया, फ्लिप पूरा ऑपोजिट में, और प्लस होने से वेक्टर सेम डायरेक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, राइट। राइट हैंड रूल लिखो, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर। राइट हैंड रूल लिख के फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर। स्केलर मतलब नंबर, स्केलर मतलब किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है। শেষ হয়ে গেলে ঘুমাই জিতেনি জোয়ান বাচ্চা বা জোয়ান বাচ্চা শক্তি জীবন কিছু করার টাইম। ওপেন আছে বোর্ডের সামনে লাগানি একটা আমার বাইরে থেকে আমি খালি এয়ারড্রপটা মারিয়া যাই মগে थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर पैरेलल है मतलब उनके बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब नीचे जाऊं क्या? सर मैथ्स का एंट्रेंस का क्लास कहाँ पर होगा? वो लास्ट रूम पर। हाँ
ऊपर उठाऊं क्या इसको? स्पेशल केस, क्या जो रिफ्रेश करता है इतना टाइम, ये तुम लोग जैसा है, हैंग हो जाता है। एन का वैल्यू 1 लिखा, तो एन 1 होने से पैरेलल वेक्टर का नाम बदल के क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। हाँ, फिर से ऊपर उठाऊं ये, और ऊपर। मैं समझ गया, लिख के दे दूंगा बोर्ड में, नहीं तो ऊपर नीचे करते करते। कितना सोता है रे? कितना बजे सोया रात को? जल्दी सो के। तो लेट से सोने से क्या होता? कितना? इसको नीचे लू क्या रे? एक ही जगह में तुम लोग बैठा रहता है। n इक्वल टू 1 लिखा, b इक्वल टू a लिखा, फिर लिखा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल, एंड b को क्या बोला जाएगा? इक्वल वेक्टर्स। अंडरलाइन किया इक्वल वेक्टर्स को, अंडरलाइन करके रखना इक्वल वेक्टर्स को। नहीं नहीं, ये बाद में आएगा अभी। नेक्स्ट जाऊं? अभी देखो क्या लिखा है, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? हाँ, सब पैरेलल होगा तो इक्वल होगा क्या? बट सारे इक्वल वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। लिख के रखना, ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, फॉल्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ट्रू। उसके बाद वही आ गया, क्या वेक्टर्स? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट होने से एंगल कितना डिग्री होगा? हाँ, एक लाइन इधर जा रहा है, एक वेक्टर उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 180 डिग्री। और यहां पे रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली कैसा होगा? बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए, यहां पे माइनस मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, और एंगल 180। स्पेशल केस, अगर एन का वैल्यू 1 है तो बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको बोला जाएगा क्या वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे तुम पढ़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूं F1, तो वो भी मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? F2, बट उल्टा डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F2। F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, इक्वल टू मतलब मैग्नीट्यूड सेम,
तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब F1 और F2 कैसे वेक्टर्स है? नेगेटिव वेक्टर्स। कैसा वेक्टर? तो एंटी पैरेलल का एक स्पेशल केस है नेगेटिव, है ना, जैसे पैरेलल का स्पेशल केस इक्वल वेक्टर्स, राइट। डायग्राम बनाना, ये लिखना, ये एक्शन रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे। F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच कितना एंगल? 180। एंटी पैरेलल मतलब कितना? 180, और सेम डायरेक्शन में होने से एंगल कितना? 0 डिग्री। ये सब याद रखना, छोटा छोटा एमसीक्यू, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये सबसे कंप्रीहेंसिव नोट्स है वेक्टर्स का, कुछ भी छूटा नहीं होगा नोट्स में। टाइम लगेगा थोड़ा खत्म होने में, लेकिन डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी सब किया हुआ होगा। आठ पेज पढ़ा पाऊंगा क्या? अभी कितना नंबर पेज है? एक दिन में 8 पेज नहीं पढ़ाने से तो काम नहीं होगा। मिनिमम तो हाँ, नहीं n इक्वल टू 1 है, तो माइनस पकड़ ही लिया, तो फिर से माइनस बिठाने का जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन में माइनस पकड़ ही लिया, तो n का वैल्यू क्या पकड़ लिया? 1, है ना? बुच्चुत नहीं तो एमा बुच्चुत नहीं পুরা বালা টাইমে আইসত ভেক্টরস আর বেসিক ম্যাথস বাকি এই দুইটা ছুটি গেলে আর বাচ্চারে কভার করা যায় না, তারপরে পুরা ফিজিক্সও অসুবিধা থাকে। আমিও তালিকা পড়ছিলাম না, একদিন পড়ছি, তো বহুত বালা ডিসিশন লইলিস তাড়াতাড়ি। আমি স্যারের কাছে গেছিলাম 2007 ক্লাস 11 যখন আসলাম, তাই খালি পড়ানি শুরু করছিল তখন, জাস্ট এমএসসি শেষ করিয়া একদিন পড়িয়া কইছে আর পড়তাম, কেন কি ডাউট জিগাইছি তাই না কইয়া দিরা না। তাই আমি কইছি ডাউটই যদি না কইয়া দেতে আমার কোনো দরকার নাই টিচারের। আমার সময় তো অনলাইন আসিল না, তখনও আমার এই পড়া আসলো, তখন তো তোমরা অনলাইন আছে। ফিজিক্যাল টিচারের মেইন কাজ হলো শিট প্রবলেম, ডাউটস, ডেরিভেশনস কোনটা ইম্পর্টেন্ট ওইগুলো তুমি কনসাল্ট করতে হয়। এই জিনিসগুলো যদি কনসাল্টই না হইলো, তো আজকাল তো রিসোর্সেসের অভাব নাই, আমরা সময় তো রিসোর্সেসের অভাব আছে, তবু আমি ডিসিশন লইলিছি। কারণ কি অত গর্বওয়ালা মানুষের কাছে পড়া যায় না। टीचर तो टीचर, भला बच्चा टीचर, खराब बच्चा टीचर, टीचर तो बच्चा भला खराब है ना, बच्चा सब बच्चा हो, बच्चा कितना हो बच्चा। के बच्चा भला আছে কে খারাপ আছে, খারাপ বাচ্চাও আমি দেখছি ভালো হইতে, আর ভালো বাচ্চাও দেখছি খারাপ হইতে। সো ফিক্সড রুল নাই যে এই বাচ্চা ভালো আর এই বাচ্চা খারাপ, রুল আছে নি কিচ্ছু। ওই যে অ্যাডভান্সও র্যাঙ্ক আনছে এবার 1, মানে আইবো বিহারের একটা ছেলে শুভম কুমার, যেই মেইনসও তার রেজাল্ট নাই, যেই মেইনসও है কিন্তু টপ 10ও না, কিন্তু যেই অ্যাডভান্সও है র্যাঙ্ক 1। তো বিহারের বাচ্চাগুলোরে দে আর সো ডিপ্রাইভড ইন অল রেসপেক্টস, অলিম্পিয়াড হোক, আইএএস হোক, যেই অ্যাডভান্স হোক, সব জায়গায় তারা টপ, রেলওয়ে এক্সাম হোক। বাচ্চা যত ডিপ্রাইভড থাকে, যত রিসোর্সেস কম পায় না নি, ওই বাচ্চাগুলা আমি দেখছি বেশি শাইনও করে।
अभी देखो क्या लिखा है, ऑल छोटे नेगेटिव वेक्टर्स हैं ट्रू, और मोटे पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स फॉल्स। अरे समझ में आया क्या? नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल तो होना ही पड़ेगा, तो ये तो ट्रू है, बट एंटी पैरेलल होगा तो नेगेटिव होगा बोल पाएंगे क्या? एंटी पैरेलल होगा तो नेगेटिव होगा क्या? सब एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नेगेटिव में मैग्नीट्यूड सेम होना ही चाहिए। तो ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर मोटे पैरेलल ट्रू बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर्स। फिर क्या लिखा है? डेफिनेशन पढ़ना एक बार, क्या लिखा? इफ द वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ? सुनना, ध्यान से सुनना। सेम डायरेक्शन लिखा है क्या, या सेम लाइन लिखा है? बस सेम लाइन। इसका मतलब मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों सेम लाइन में है? नहीं है। हाँ, थीटा कितना डिग्री है? 0। दोनों वेक्टर सेम लाइन में है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी, तो इनको क्या बोला गया था थोड़ी देर पहले? नहीं, पहले क्या बोला था? थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अच्छा, अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये भी तो सेम लाइन पर है, दे आर ऑल्सो इन द सेम लाइन। इसको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? एंटी पैरेलल वेक्टर। और दोनों का कॉमन नेम है रे कोलिनियर वेक्टर। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? दोनों का कॉमन नेम, अगर वेक्टर सेम लाइन पर है, डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर वेक्टर सेम लाइन पर है, दे विल कम अंडर द कॉमन बैनर ऑफ व्हाट? कोलिनियर वेक्टर। मतलब पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बोथ कम अंडर व्हाट? कोलिनियर वेक्टर। राइट डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर, राइट डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर। आज कुछ वेक्टर्स का मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया, वेक्टर्स का कोई लॉ पढ़ाया क्या? टफ कुछ बताया क्या? ओनली नोमेनक्लेचर, मतलब क्या क्या वेक्टर्स है, क्या क्या वेक्टर्स है, नाम क्या क्या है, मीनिंग, डायरेक्शन क्या होता है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है वेक्टर में, वो सब बताया। इसको ऊपर उठाऊं थोड़ा, ये देखो नोट देके लिखा होगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोथ कम अंडर व्हाट? कोलिनियर। ये कितना नंबर पेज है? अभी तक 6 में हूं। तुम लोग क्या करता है रे? मछली लेके जाऊंगा कब बीवी बनाएगी, गाली देगी फिर। तुम लोग इतना स्लो क्यों लिखता है रे? चेंज कर दूं? वो दे लेखे बच्चा ना लेखे। स्वेटर पहन के आ जाना। नेक्स्ट जाऊं क्या? अभी देखो, ये यही बताया, ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या बोला जाता है? पैरेलल। उल्टा है तो? और दोनों का कॉमन नेम क्या है? कोलिनियर। अच्छा बोलना तो, अगर वेक्टर सेम लाइन पर है तो वो लोग ट्रायंगल बना पाएंगे क्या? तीन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बनाने के लिए कितना चाहिए? तीनों सेम लाइन पर होगा तो ट्रायंगल बना पाएगा क्या? नहीं। तो अगर 3 कोलिनियर वेक्टर है तो उससे बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं समझ में आया? तीनों वेक्टर सेम लाइन पर है तो इनका नाम क्या है? तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा क्या?
सेम लाइन पर रहने से ट्रायंगल बन पाएगा क्या? तो उनसे बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। आया समझ में? राइट। छोटा छोटा चीज है लेकिन दिमाग में नहीं आएगा एग्जाम में। वो इसको मैंने हाँ हाँ ठीक है, लिख लिया तो नहीं चाहिए। तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय 3 कोलिनियर वेक्टर्स। ये थियोरेटिकल सवाल है, छूट जाता है एग्जाम में, उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन कोई अच्छा आदमी बनाएगा पेपर तो पूछेगा। छोटा छोटा चीज है। हाँ, एंगल मेड बाय देम इज 0। यहां पे और एक चीज छूट गया, और 180 डिग्री। और कितना डिग्री? हाँ, ऑपोजिट होने से तो 180 होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन में दो ही एंगल पॉसिबल है, इधर 0 और 180। हाँ, कोलिनियर मतलब बस सेम लाइन पर होना चाहिए। तो सेम लाइन पर दो ही एंगल पॉसिबल है, 0 और 180 डिग्री, इसलिए लिखा है एंगल मेड बाय देम इज 0 और 180। फिर क्या आया? को इनिशियल, और इनको कॉन्करेंट वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट। ये पूछा जाता है एग्जाम में। इफ द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर वेक्टर सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ओ पॉइंट से देखो सब शुरू हुआ ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। सो इफ द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब ओरिजिन अगर सेम है सबका, ओरिजिन मतलब शुरुआत कहां से? ओ पॉइंट से। अरे समझ में आया क्या? तो अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग सबका सेम है तो उनको क्या बोला जाएगा? को इनिशियल वेक्टर। सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट, सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट डायग्राम बना के लिख के रखना। कॉन्करेंट कब बोला जाएगा? सुनना, कॉन्करेंट लेकिन ऐसे नहीं बोला जाएगा। कॉन्करेंट कब बोला जाएगा मैं बोलता हूं तुमको। मान लो 3 फोर्स काम कर रहा है, 3 फोर्स मान लो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, और बीच में कुछ एंगल है मान लो 60 डिग्री, और इधर मान लो 8 न्यूटन। लेकिन सब मिला के मान लो नेट 0 है। नेट कितना है? मान लो पता नहीं मुझे वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, अभी तो बताया नहीं मैंने, लेकिन मान लो सब मिलके कितना बना रहे हैं, तो तीनों को बोला जाएगा कॉन्करेंट। क्या बोला जाएगा? मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि फोर्स लगने से ही ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में फोर्स लग सकता है, जैसे यहां पर लगा, यहां पर लगा, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं चला। मान लो यहां पर 3 फोर्स लगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, 3, 1 2 3, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं चला, तब तीनों को क्या बोला जाएगा? कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स? अगर सेम जगह से शुरू होगा तो को इनिशियल, अगर तीनों मिलाकर नेट इफेक्ट 0 है तो कॉन्करेंट। तो मैं लिख के दे देता हूं, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। इफ नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 3 वेक्टर इज 0, if net effect produced by 3 vectors is 0, then they are also called क्या vectors? concurrent vectors। बस 8 पेजेस खत्म करना है। 8 पेज नहीं पढ़ा के जाने से आराम नहीं लगेगा। धीरे धीरे 10, फिर 12। हाँ, ऊपर नहीं जाऊं? वैसे ना ঠান্ডায় বরফ হয়েছিল কি তাহলে? ঠান্ডা লাগেনি বেশি?
গরম গরম খাইস ফাটা আজকে রবিবার তো ফাটা খসির তেল হ্যাঁ খাস না তুই জীবন রাখছো তুই তা ফুরিয়ে উড়িয়ে কিতা করতে मतलब 3 वेक्टर होने से कोई इनिशियल बोलेंगे कॉन्करेंट बोलेंगे, लेकिन कॉन्करेंट से तीनों मिला के नेट इफेक्ट कितना है 0 है नहीं तो कोई इनिशियल बोलेंगे क्या इफ नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई 3 वेक्टर इज 0 इफ नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई 3 वेक्टर इज 0 আমি তো দৌড়াইও সকাল থেকে খালি খাওয়ার লাগে বড় ইচ্ছা রেস্টুরেন্টে বইতাম আর সব ডিশ খাইতাম বইয়া বইয়া পেটে যারুক না যারুক দেখা যাইব एक दिन मिठाई खाने का मन किया तो दुकान में जाके बोला सब सजा के दे दो प्लेट में एक एक खाइया भूमि हो रही एनआईटी में भी जब था तब तो और खाता था अभी तो पेट साथ नहीं देता एनआईटी में मेरा खुद का प्लेट खत्म करता था फिर दोस्तों का जिसका प्लेट में जो बच जाता था सब खाता था मैं वो लोग तब बोलता था मरेगा 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 उसके बाद पेट में पकड़ लिया सुबह चाउमीन फिर चिकन के ऊपर फिर अंडा फिर चिकन घर में जाओ फिर चिकन फिर मटन मतलब वो वेज तो घुसता ही नहीं अंदर मुंह के अंदर पनीर इस कौन जो खाता है पनीर लोग बोलता है पनीर टेस्टी है पनीर टिक्का ये सब मैं कभी नहीं खाता रेस्टोरेंट में जाते ही चिकन तंदूरी अफगानी चिकन ये लिखा गया इफ द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग हो गया अरे इसको रब करूं कॉन्करेंट का डेफिनेशन हेडिंग देना कोप्लेनर फिर क्या हेडिंग दिया कोप्लेनर मतलब इफ द वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन तो समझाने के लिए मैंने एक क्यूब बना दिया क्यूब ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये बाहर आएगा जेड एक्सिस क्या क्या बोला मैंने ये एक्स है ये अच्छा शायद ये एक्स है ये वाई है और बाहर क्या है जेड तो ये एक्स वाई प्लेन क्या प्लेन अरे ये समझ में आता है ना नहीं आता ये क्या है एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन ऐसे बोलेंगे ना प्लेन मतलब टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई से तो दोनों वेक्टर अगर सेम प्लेन में है जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको क्या बोला जाएगा कोप्लेनर बी सी और डी को कोप्लेनर बोला जाएगा क्या सी और डी अलग अलग प्लेन पर है तो उनको बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर क्या बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर लिखा रे प्लेनर समझ में आया प्लेन समझ में आया प्लेन क्या होता है प्लेन एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन ऐसे बोलते हैं नाम मतलब
बोर्ड कितना डायमेंशन है, एक्स और वाई, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्स वाई प्लेन, क्या बोला जाएगा। अच्छा बोलो तो अगर बोर्ड में मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया दो वेक्टर, मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया बोर्ड में, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों को क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर, बिकॉज दे आर बोथ लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दे आर बोथ लाइंग ऑन द, अगर सेम प्लेन पर दोनों वेक्टर रहेगा तो दोनों को क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर। नहीं लिखा, लिखा या नहीं लिखा, ये कितना नंबर पेज में आया, 7 में आया। आगे बढ़ू, नहीं सीडी में कोप्लेनर लिख दिया इस लड़की ने, अरे ये लड़की कैसा टॉपर है रे। नॉन कोप्लेनर, सी और डी कैसा है, नॉन कोप्लेनर। इसका नोट्स लिया था, उसको बोला था फोटो मार के देना, उसको बोलना रे तुम, आ जाएगा शाम को, आके बोल के जाना क्या लिखा दीदी। सर ने तो क्लास में लास्ट ईयर ठीक से ही बोला होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। दीदी को तुम बोलना, मैं बोलने से तो सुनेगा नहीं, जूनियर बोलेगा तो लज्जा मिलेगा। नॉन कोप्लेनर, सी और डी क्या है, नॉन कोप्लेनर। ए और बी कैसा है, कोप्लेनर। ओके, को शब्द का मतलब होता है सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन। नेक्स्ट जाऊं, लास्ट पेज बस खत्म। हाँ ये सही है। अभी जो आया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, और उसके साथ क्या पढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ अभी सुनना, पहले कौन आया, यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए का माथा में टोपी पहनाएंगे, टोपी क्या पहनाएंगे, तो पूरा दुनिया एक दूसरे को टोपी पहनाता है ना, तो हम लोग ए वेक्टर का ऊपर क्या लगाएंगे, टोपी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप और हैट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वेक्टर। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, लेट अस कम टू द डेफिनेशन। बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो क्या, मान लो ये ए वेक्टर है, क्या वेक्टर, और ये याद रखना, कॉपी में नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट को कैसे डिनोट करेंगे, ये होगा नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या, ईस्ट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। नाउ अगर मैंने बोला ए वेक्टर है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, क्या बोला मैंने, 5 मीटर टुवर्ड्स क्या, ईस्ट। मान लो 5 मीटर को मैंने 5 इक्वल हिस्सा में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, हो गया ना। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और क्या रे, 1 मीटर है ना। ये 5 मीटर क्या है बोलना एक बार, मैग्नीट्यूड, और टुवर्ड्स ईस्ट क्या है, डायरेक्शन, मतलब ये है मैग्नीट्यूड और ये क्या है रे, डायरेक्शन। अभी सुनना, अगर मैंने पूरा वेक्टर को रब करके बस ये पार्ट रख दिया, ये पार्ट, एक पार्ट बस लास्ट ये वाला, अरे समझ में आया, पूरा वेक्टर को काट के फेंक दिया, बस इसको रख दिया, ये क्या बचा, 1 मीटर। किधर, टुवर्ड्स ईस्ट किसका डायरेक्शन था, ए वेक्टर का, जो ओरिजिनल वेक्टर है। ओरिजिनल वेक्टर से मैंने 4 टुकड़ा फेंक दिया, बच गया ये वाला लास्ट हिस्सा। तो लास्ट हिस्सा का मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट किसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर, मतलब कंप्लीट वेक्टर जो था। इसलिए लिखा गया है डेफिनेशन में, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देखो क्या लिखा गया है, इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट वेक्टर, फुल वेक्टर, मतलब ये फुल वेक्टर का ही पार्ट है, और ओरिजिनल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज व्हाट, यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी शब्द का मतलब क्या होता है, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी,
एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ क्या वेक्टर, फुल वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर इज ए पार्ट ऑफ फुल वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन वो उसके साथ क्या लेकर आएगा, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, ओरिजिनल वेक्टर का। किसका, ओरिजिनल वेक्टर का। मतलब यूनिट वेक्टर का जन्म हुआ है फिजिक्स में बस डायरेक्शन देने के लिए। क्या डायरेक्ट देने के लिए, डायरेक्शन। मतलब ओरिजिनल वेक्टर का कभी भी तुमको डायरेक्शन अगर देना है तो तुम किसको डिफाइन करेगा, यूनिट वेक्टर। किसको डिफाइन करेगा, यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माथा में क्या लगाएंगे, टोपी। जैसे नॉर्मल वेक्टर को तो हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को लिखते वक्त याद रखना यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय ए कैप, बाय ए वर्ड। आया समझ में, आया या नहीं आया। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट। अभी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बोलने में फिजिसिस्ट को दिक्कत होता है। फिजिसिस्ट लोग ज्यादा बोलते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा तो हम लोग बोलते हैं, कम दामी लोग। अच्छा लोग जो है इंटेलिजेंट, वो लोग कम बोलते हैं। तो कम बोलने के लिए उन्होंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर ऐसे बनाते हैं, जैसे ईस्ट में होगा तो कभी कभी देखना वो लोग लगा देंगे ई कैप। क्या लगा देंगे रे, ईस्ट में होगा तो लगा देंगे, अरे और ये कलर व्हाइट है इसलिए तो नहीं दिखता, ई कैप। ई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट। अभी बार बार वेस्ट ना बोलकर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू कैप। अगर नॉर्थ को लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, एन कैप। साउथ को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, नहीं आया। मतलब हम लोगों ने अपना मेहनत बचा लिया। बार बार कौन ईस्ट नॉर्थ साउथ बोलेगा, क्या बोलेंगे स्टाइल से, एन कैप। तो एन कैप से समझ में आ गया, अच्छा नॉर्थ की तरफ। डब्ल्यू कैप मतलब, ई कैप मतलब, तो हमने अपना मेहनत बचा लिया। नहीं समझ में आया। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, देखो बोलने में कितना लंबा बोलना पड़ता है, तो इससे अच्छा 1 मीटर पर सेकेंड क्या लगा दिया, ई कैप। समझ में आ गया, ईस्ट डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है, दैट इज द मेन यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। वो डायरेक्शन देने में काम में आता है। क्या देने में, डायरेक्शन। क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो बेचारे का 1 है ना, खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, लेकिन वो क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। लिखा गया, पूछा जाएगा एग्जाम में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आज का क्लास का सबसे 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना टाइम जो पढ़ाया कुछ नहीं आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर से शुरू होगा एग्जाम में क्वेश्चन। डिफाइन यूनिट वेक्टर और नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बना के रखना विथ एग्जाम्पल। 1 को यूनिटी बोला जाता है, शब्दों को समझो। तुम जितना जल्दी समझो, यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड मैथ्स, उतना मुझे इजी होगा। मुझे कम बोलना पड़ेगा, तुम समझेगा ज्यादा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन आई विल हैव टू टॉक वेरी लेस and you will understand more, and that day will come when you understand vectors and maths. लिखा, ई कैप, एस कैप, डब्ल्यू कैप, एन कैप। 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। 1 का मतलब यूनिटी, 1 का मतलब यूनिटी। बस खत्म हो जाएगा अभी। वी आर एट द एंड ऑफ नंबर 8। नेक्स्ट डे टारगेट है 10। हाँ, 2-2 पेज करके बढ़ा देंगे हर दिन। नहीं मतलब 14 पेजेस एनफ होगा, वहां पे जाके फिर और बढ़ाएंगे तो एक दिन में कितना होगा। कोर्स बहुत बड़ा है तो, और सब नोट्स लिखा के, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल शीट दे के 10 साल लग जाएगा क्लास 11 का खत्म करने में। बहुत बड़ा सिलेबस है। वी आर नॉट इवन 0.01% ऑफ द सिलेबस। बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है साइंस स्ट्रीम। क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। सारा इंजीनियर्स तो बैंक में नौकरी कर रहा है, रेलवे में ट्रेन चला रहा है,
एवरीवेयर इंजीनियर्स, मैं टीचर हूं इधर। दिस इज वाई इंजीनियरिंग इज अ मस्ट चॉइस फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। वंस यू कंप्लीट डिग्री इन इंजीनियरिंग यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन बी ए टीचर, यू कैन बी ए लोको पायलट इन रेलवे, गाड़ी चला सकता है। यू कैन बी ए क्लार्क इन बैंक। ये उधर लिख लिया, खत्म हो गया। अभी यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस को तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। अरे जेड एक्सिस तो बाहर आएगा ना, बाहर कैसे दिखाऊंगा? बोर्ड तो 2 डायमेंशन है। बोर्ड कितना डायमेंशन है? 2, एक्स और वाई। तो जेड को मुझे बाहर दिखाना पड़ेगा और ऐसे कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब बाहर, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब अंदर। अभी देखो बुक्स में जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, अभी बार बार तो एक्स एक्सिस नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया? आई कैप लगा दिया। क्या लगा दिया? मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो प्लस आई कैप। क्या? ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में अगर डायरेक्शन बताना है तो आई कैप से बताना होगा। किससे? आई कैप। पॉजिटिव एक्स है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव है तो माइनस आई। अरे समझ में आया? फिर अगर पॉजिटिव वाई है तो क्या? प्लस जे कैप। नेगेटिव है तो माइनस। पॉजिटिव जेड है तो प्लस के कैप और नेगेटिव जेड है तो माइनस के कैप। तो अगर मैंने ऐसे लिखा किसी वेक्टर को, मान लो मैंने ऐसे लिखा 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसका क्या मतलब हुआ बोलना मुझे? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना चला है? 5, वाई एक्सिस में और नेगेटिव जेड एक्सिस में 5। दिस इज हाउ विल इंटरप्रेट वेक्टर। अंडरस्टूड? नहीं आया समझ में? आया? अगर किसी वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो मैं तुमको बता रहा हूं कि आई कैप में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जे कैप में मैग्नीट्यूड कितना है और के कैप में मैग्नीट्यूड कितना है। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? क्या जो अंडरस्टूड सब समझ में आएगा? नेक्स्ट जैसे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएगा। अच्छे से करना, ध्यान से। जितना सुनेगा 2 साल में फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। फिर सब बात सुन के एग्जाम देगा, अच्छे से 90-95 लाएगा तुम। अगर खुद ही सोच लिया होगा हाँ मैं 30 से खुश हूं तो 30 ही मिलेगा। वो मिलता है। जैसा मुझे जितना भी पैसा दे दो खुशी नहीं मिलता है, और चाहिए। अंबानी को जितना पैसा दे दो खुश होता है क्या कभी? नहीं। ये लोग ही बड़ा हो पाएगा जो कभी खुश नहीं रहता है, दुखी रहता है हमेशा। जैसे अभी मछली बाजार में दे दूंगा पैसा, दुख लगेगा मुझे। लेकिन नहीं लेके जाऊंगा तो घर में बीवी और दुख दे देगी। ये लिखा क्या? आई कैप जे कैप के कैप लिखा? नहीं लिखा। डायग्राम बनाया, ऊपर उठाऊं, बस ये खत्म। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन आई कैप और माइनस आई कैप, वाई डायरेक्शन जे कैप और माइनस जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप और। अच्छा सुनना, ऐसा नहीं है आई कैप हमेशा होगा। किसी किसी बुक में एक्स कैप भी दे देंगे रे। क्या दे देंगे? और किसी किसी बुक में ये वाई कैप भी दे देंगे, और कहीं पे इसको जेड कैप भी दे देंगे। अंडरस्टूड? ये प्लस आई कैप है। बस